Hello dear student, I'm Mahendra Jakulwar and once again welcome to my YouTube channel. Dear friends, in previous video we have studied if the current carrying conductor is placed in a magnetic field in such a way that the current flowing through the conductor is perpendicular to the direction of magnetic field. In that case, the current carrying conductor will experience the force, and because of this the conductor moves in the magnetic field. But if electrical conductor is moving in a magnetic field or the magnetic field around the stationary conductor is changing, जैसे हमको पता है अगर किसी भी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, लेकिन अगर हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, किसी भी स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, सो ऐसे केसेस में क्या होगा? सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन and get notified. So dear friends, without wasting much time, let's come to the point. Our question is, what happens when electrical conductor is moving in a magnetic field? Or you can say, what happens when the magnetic field around the stationary conductor is changes? To find answer to this question, the research was done by a great scientist Michael Faraday in 1831. And the Faraday shows that the electric current can be produced in the conductor with the help of moving magnet. This means that when you move the electrical conductor in the magnetic field, or you can change the magnetic field around the stationary conductor, at that time the electric current will be generated in that conductor. So this is the simply known as Faraday's electromagnetic induction. So dear friends, in this video we are going to study the very important topic, that is Faraday's electromagnetic induction. To understand what is meant by the Faraday's electromagnetic induction, we have to understand about the activity which is given in your textbook. Make the connection by connecting the galvanometer as shown in the picture and place a bar magnet in such a way that its north pole is just below the copper wire. And when we move the bar magnet from point A to point B, then you can see the deflection in the galvanometer. This means that when you move the magnet or when you change the magnetic field around the conductor, then the galvanometer will show the deflection in this circuit. Let me clear one thing. The galvanometer is a device which is used to identify whether the current is flowing through the circuit. So in this experiment, the galvanometer is showing deflection. This means that the current is generated in the conductor. The current is flowing through the conductor. And in the second case, we kept the magnet at a rest and we just move the conductor right from position A to B. In that case also, the galvanometer which is connected to the copper wire will shows the deflection. Either you change the magnetic field around the stationary conductor or you move the electrical conductor in a magnetic field. At that time, the galvanometer will shows the deflection. This means that the current flow through the electrical conductor. This is known as Faraday's electromagnetic induction. And the current which is generated in the conductor is known as induced current. तो आपको समझ में आया होगा, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं या फिर स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं, उस समय उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और ऐसे करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पे हमेशा दो बातें ध्यान में रखना है. जब किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, उस समय उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, या फिर किसी भी स्टेशनरी कंडक्टर के अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करते हैं, उस समय भी उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इसी करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट. एक और एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए. लेट्स सी द सर्किट गिवन इन द फिगर. In this figure, the current is flowing through the solenoid coil. As we know that when the current is flowing through the solenoid coil, then the magnetic field is developed around it.
and the another coil which is connected to the galvanometer brings near this magnetic field or the current carrying solenoid. At that time you can see that the galvanometer will shows the deflection. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के पास कोई दूसरा कॉइल ले जा रहे हैं जिसको हमने एक्सटर्नली गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, तो उस समय क्या होगा, जैसे इस कॉइल को हम मूव कर रहे हैं तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन बताएगा। जैसे हमको पता है सोलेनॉइड में से जब करंट जाता है तो उसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और हम इस कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स दैट द कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन। इन सेकेंड केस, keep the coil stationary। अब कॉइल को हमको रेस्ट में रखना है, स्टेशनरी रखना है। नाउ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द सोलेनॉइड। अब हम सोलेनॉइड की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे भी क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम ज्यादा होगा। मतलब इस कॉइल के राउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड दिस कॉइल इज चेंजिंग। So in that case also the galvanometer will shows the deflection. This means that when the current carrying conductor is moved in a magnetic field or when the magnetic field around the stationary current carrying conductor changes, at that time also the electric current will generate in the conductor, and this is known as Faraday's electromagnetic induction. And suppose if we kept the solenoid as well as the coil stationary or at rest, but if you change the current flowing through the solenoid, at that time also the galvanometer will shows the deflection. This means that from these three cases we understand that when the magnetic field around the stationary current carrying conductor or current carrying coil is changes, then the current will be developed in the coil. In the second case, when we kept the magnetic field stationary and we move the current carrying coil, at that time also the galvanometer will shows the deflection. And in third case, when we kept the solenoid as well as the coil stationary or at rest, but if you change the current through the solenoid coil, at that time also the galvanometer will shows the deflection. इसका मतलब ये हुआ, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो किसी भी कंडक्टर के राउंड, किसी भी स्टेशनरी कंडक्टर के राउंड, उस समय भी उसमें करंट जनरेट होगा या फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। सेकेंड केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा लेकिन अभी कंडक्टर की पोजीशन चेंज कर रहे हो, कंडक्टर को मूव कर रहे हो, उस समय भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। और तीसरे केस में जब आप कंडक्टर को और सोलेनॉइड को दोनों को रेस्ट पोजीशन में रखोगे, बट उस सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर आप चेंज करते हो तो भी इधर गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका डिफ्लेक्शन बताएगा। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट अस कंसिडर अ सोलेनॉइड कॉइल। एक हम सोलेनॉइड कॉइल लेते हैं लाइक दिस। इसको हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया थ्रू अ की like this. Now the another current carrying conductor or you can say the coil, और एक दूसरे कॉइल को हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखते हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर लाइक दिस। तो यहां पे देखो, तो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, एंड एज यू नो दैट द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। जब इस कॉइल में से, इस सोलेनॉइड कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो हमको पता है द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट अराउंड दैट कंडक्टर और अराउंड दिस सोलेनॉइड कॉइल। और हमने ये भी देखा था कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। चलो मानते हैं कि जैसे इसमें से आई करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा तो उस समय क्या हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन बताता है। एक चीज यहां पे ध्यान में रखना, इन दोनों कॉइल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसे करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट।
तो क्या हो जाएगा, जब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को लाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या बताएगा, वो डिफ्लेक्शन बताएगा. दिस गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. दिस मीन्स दैट व्हेन यू मूव दिस कॉइल in the magnetic field produced by this solenoid, then the current will induce in this coil. In second case में क्या करते हैं, सेकेंड केस में हम इस कॉइल को रेस्ट में रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं. अभी हम इस सोलेनॉइड को मूव करते हैं, राइट. इस सोलेनॉइड को जब हम दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, इसके राउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, राइट. इसके रिस्पेक्ट में जब ये पास में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मिलेगा इसको. जब हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी डिक्रीजेस. एट दैट टाइम ऑल्सो द गैल्वेनोमीटर विल शोज द डिफ्लेक्शन. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है when the magnetic field around the stationary conductor is changes, at that time the current will be induced in the coil, and this is known as Faraday's electromagnetic induction. और थर्ड केस में जब हम इसमें से करंट को कम ज्यादा करते हैं, इसमें से करंट कम किया या फिर ज्यादा किया, तो भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा. क्योंकि हमको पता है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड दिस सोलेनॉइड कॉइल इज टोटली डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड कॉइल. सो किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए या फिर करंट इंड्यूस होने के लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट है. पहला है क्या होगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख के इसका पोजीशन चेंज करते हैं, इसको मूव करते हैं, या फिर थर्ड केस में हम इस कॉइल में से या फिर सोलेनॉइड में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कम ज्यादा करते हैं. इन तीनों भी केसेस में गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. दिस मीन्स दैट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. किसी भी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है. दिस इज सिंपली नोन एज फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब सवाल ये उठता है कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से करंट इंड्यूस हो रहा है. जब इस सोलेनॉइड कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होगा. ये जो इंड्यूस करंट है ये मैक्सिमम कब होगा, राइट. ये मैक्सिमम तब होता है जब द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी. So in order to find the direction of induced current, the Fleming's right hand rule is very useful. हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं. जैसे हमने फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में स्टडी किया था, सेम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. डिफरेंस ये है इन दोनों में का, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में का. लेफ्ट हैंड जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है और राइट हैंड जो है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है. So dear friends, let us see what is Fleming's right hand rule. Fleming's left hand rule में जिन 3 फिंगर्स का हमने यूज किया है, उन्हीं 3 फिंगर्स का यूज हम राइट हैंड में भी करेंगे. लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ये रहेगा, हमने लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को लिया था, राइट हैंड रूल में ऑब्वियसली राइट हैंड के फिंगर को लेना पड़ेगा. सो स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब in such a way that they are mutually perpendicular to each other. इन तीनों फिंगर को हमको इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे केसेस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड करना है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, वो हम करंट के ऊपर से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग थंब रूल. ओके, फिर उसके बाद इस कंडक्टर को हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये भी हमको पता है. लेकिन इसमें से जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा या फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमको पता नहीं है. उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. सो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और मोशन ऑफ द कंडक्टर इसकी भी डायरेक्शन पता है, तो हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. सो स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. In this case, if the thumb represent the motion of the conductor and
the index finger represent the direction of magnetic field. In that case, the middle finger will shows the direction of induced current. बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। क्या होता है कि जब हम राइट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, उस केस में अगर थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर बता रहे हैं, जैसे हमको इसको मूव कर रहे हैं, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन बता रहे हैं। एंड इंडेक्स फिंगर, एज यू नो दैट इंडेक्स फिंगर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो उस केस में ये मिडल फिंगर जो है वो क्या रहेगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। दिस इज द सिंपल फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये हमको देखना है। और बेसिक क्या डिफरेंस होता है इन दोनों करंट में। जैसे हमको पता है द नॉन ऑसिलेटरी करंट which is flow in one direction from cell to cell is called as direct current. जो नॉन ऑसिलेटिंग करंट है, जो ऑसिलेट नहीं हो रहा है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट, जो ऑसिलेट नहीं हो रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ऑसिलेट। अल्टरनेट करंट जो है वो ऑसिलेट होता है, ओके, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ओके। और सेकेंड बात जो है, द डायरेक्ट करंट कैन बी इंक्रीज, कैन बी स्टेडी और कैन बी डिक्रीज। डायरेक्ट करंट जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं हम, डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसको कांस्टेंट स्टेशनरी भी रख सकते हैं। जैसे फिगर में आप देख सकते हो ग्राफ में, इंक्रीजिंग डीसी, स्टेबल डीसी एंड रिड्यूसिंग डीसी, राइट। इसका मतलब है जो डायरेक्ट करंट होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं, या फिर उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, ओके। बट द अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी। एज यू नो दैट अल्टरनेट करंट जो है वो ऑसिलेट होता है। द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी इंक्रीज टू मैक्सिमम, देन रिड्यूस टू जीरो एंड अगेन इंक्रीज टू मैक्सिमम इन अनदर डायरेक्शन। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस करंट इज ऑसिलेटिंग। ये करंट क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। हाफ साइकिल पॉजिटिव बता रहा है और हाफ साइकिल नेगेटिव। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट जो है वो ऑसिलेट नहीं होता है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। द ऑसिलेटरी करंट ऑकर्स इन अ सिनोसाइडल मैनर। जैसे ये सिनोसाइडल, इसको बोलते हैं सिनोसाइडल वेव्स। हायर स्टैंडर्ड में आप स्टडी करोगे। ये सिनोसाइडल मैनर में ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए इसके लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे वो ये सिंबल यूज करेंगे। दिस सिंबल इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी और डीसी भी बोल सकते हैं। एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। द टाइम टेकन बाय एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, टू कंप्लीट वन साइकिल इज 1/50 second. 1/50 second. So the frequency of alternating current in India is 50 hertz. हमारे इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज 50 हर्ट्ज। हमेशा ध्यान में रखना। सो ये एसी का यूज क्या होता है, जैसे हम दोनों भी करंट को यूज कर सकते हैं, हम डीसी भी यूज कर सकते हैं, एसी भी यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन एसी का क्या बेनिफिट है, सो जो लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, जब एक जगह से बहुत दूर तक पावर को ट्रांसमिट करना है, उस समय करंट का एसी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी देर इज अ मिनिमम पावर लॉस। उसका पावर लॉस जो है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में उसका जो पावर लॉस होता है वो मिनिमम रहेगा। इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस जब हम करंट भेजना होता है, हमको या से कहीं दूर तक करंट को सप्लाई देना होता है, तो हम एसी यूज करते हैं। वहां पे डीसी को हम यूज नहीं कर सकते। अगर डीसी को यूज करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा पावर लॉस होगा। सो फॉर दैट एसी इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। और हमारे घर में जो करंट का सप्लाई होता है वो क्या होता है, एसी होता है, राइट। हम डीसी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी के फॉर्म में होता है। तो बच्चों, आई होप
आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।